So this is exercise 4.1 and we are going to do the word problems only. So this is question 2 part first. Represent the following situation in the form of quadratic equations. Quadratic equations की form में इनको इन situations को हमने show करना. Okay. So first part is the area of the rectangular plot is 528 meters square. Area is given of a rectangular plot. The length of the plot in meters is one more than the twice of its breadth. This is the condition given. We need to find the length and breadth of the plot. हमने उसकी length और breadth find करनी है. Okay. So हमें condition से क्या पता लग रहा है? The length of the plot is one more than twice of its breadth. The length of the plot is one more than twice of its breadth. So इसको करने के दो methods हैं, हम दोनों methods से इसको करेंगे. Okay. So first method is let breadth is equals to x. breadth को x मान लेते हैं. The length of the plot is one more than twice its breadth. The length of the plot is one more than twice its breadth. Means जो length है plot की that is one more than twice its breadth. breadth का twice करने के बाद अगर उसमें one add कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी length आ जाएगी. So this is the breadth and this is the length. And the other thing is given to us is area of the rectangular plot, that is 528 meters square. So area of the plot given is 528 meters square. Okay. So what is the area of a rectangle? Length into breadth. Therefore length is 2x plus 1 and breadth is x. So दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया विच इज 528. सो इससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. अब इस x को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, एक बार इसके साथ और एक बार 1 के साथ. सो x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, x इंटू 1 इज x इक्वल्स टू 528. सो 2x स्क्वायर प्लस x minus 528 is equals to 0. This is the quadratic equation. Okay. So यही हमने फाइंड करनी थी, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी और हमने फॉर्म कर दी. इफ़ यू वांट आप इसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. आपके पास दो मेथड्स हैं निकालने के लिए, एक तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग एंड द अदर इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज द बाय यूजिंग ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन मेथड. ओके. ओके. सो इस क्वेश्चन को करने का दूसरा वे क्या है? सी, जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको ये पता नहीं रहेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है. आपको वहाँ पे समझ नहीं आएगा कि ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है कि चैप्टर 4 का क्वेश्चन है. सो आप सिंपली अपनी इंट्यूशन से इसको करते जाइए. जैसे कि we need to find the length and breadth of the plot. हमने लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है. सो सिंपली जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उसी को हम x और y मान लेते हैं. इसको भी वैसे कर लेते हैं. let the length is x and the breadth be y. Okay. So what is the condition being given? So first condition is the area of rectangular plot is 528. Area means length into breadth. So the length into breadth is 528 which is the area. Okay. उसके बाद कंडीशन गिवन है the length of the plot is one more than twice its breadth. जो length of the plot है is one more than twice its breadth. So the length of the plot is one more than twice its breadth. The length of the plot is one more than twice its breadth. So this is the equation second and this is equation first. So हम क्या करेंगे, put value of x in first equation में इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे. So वो क्या बन जाएगा, x की जगह पर हमने पुट करना है 2y plus 1. So 2y plus 1 into y is equals to 528. So the equation will become 2y square plus y minus 528 equals to 0. तो ये 528 लेफ्ट हैंड साइड जाके minus 528 आ जाएगा. So this is the quadratic equation. See,
this equation and this equation is the same equation, the only difference is the variable and that does not matter. okay, आपके पास क्योंकि आपने उल्टा सपोज किया था, यहाँ पे ब्रेथ को x सपोज किया है और यहाँ पे ब्रेथ को y सपोज किया था, इसलिए y की फॉर्म में इक्वेशन बनी है, अदरवाइज बोथ द इक्वेशंस आर सेम. सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय एनी ऑफ द वे. ओके okay, so this is the second part. The question is the product of two consecutive positive integers is 306. Two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. हमने integers को find करना है. The product of two consecutive integers given है हमें और हमने integers find करने हैं. अभी consecutive integers कौन से होते हैं? Consecutive integers का मतलब है जो बिल्कुल साथ साथ वाले integers होते हैं. For example 3 4 these are consecutive integers. एक 3 है एक 4 है, बिल्कुल साथ साथ वाले हैं. या 8 9 या 12 13 या 20 या 21, these all are consecutive integers. okay, so we have to find these integers. so हमें integers को कुछ let करना पड़ेगा. अगर एक नंबर let one number is x, अगर वन नंबर को हम x let कर लेते हैं तो अदर नंबर क्या हो जाएगा x प्लस वन, उस पर वन ऐड कर देंगे, हमारे पास अदर नंबर आ जाएगा. ओके, अगर वन नंबर x है तो अदर नंबर x प्लस वन हो जाएगा. सो दीज आर बोथ द नंबर विच वी हैव टू फाइंड. ओके, द कंडीशन गिवन इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. याद रखना ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306. मीन्स दिस मीन्स x इंटू x प्लस वन, दिस इज देयर प्रोडक्ट. सो देयर प्रोडक्ट इज 306. सो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306 और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ यू वांट आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन में पूछा नहीं गया. ओके ओके, दिस इज द थर्ड पार्ट. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. Rohan's की जो mother है उसकी age है 26 year older than him. She is 26 year older than him. The product of their ages 3 year from now will be 360. Means after 3 years दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. हमने रोहन की प्रेजेंट एज को फाइंड करना है. सो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज x. जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसको x मान लेते हैं. रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है x और रोहन की मदर्स की प्रेजेंट एज कितनी है शी इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम. मीन्स अगर रोहन की एज प्रेजेंट एज x है तो उसके मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26. x प्लस 26 हो जाएगी. ओके, सो अदर कंडीशन क्या गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. 3 साल बाद दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 360. मीन्स 3 साल बाद रोहन की प्रेजेंट एज, अगर रोहन की प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी होने वाली है x प्लस 3. एंड अगर उसकी मदर की प्रेजेंट एज x प्लस 26 है तो 3 साल बाद उनकी एज कितनी होने वाली है x प्लस 26 प्लस 3. तो ये उनकी एज हो जाएगी और दोनों का प्रोडक्ट मदर की एज का और रोहन की एज का 3 साल बाद प्रोडक्ट दोनों की एज का कितना होने वाला है 360. सो यहां से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो पहले इसको सॉल्व करते हैं. क्या बन जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3 इज 29. ओके, इक्वल्स टू 360. सो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को x के साथ फिर x को 29 के साथ. सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 3x. अब प्लस 3 को x के साथ और प्लस 3 को 29 के साथ. सो दिस विल बिकम प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 इक्वल्स टू 360.
नाउ एक्स स्क्र 3x प्लस 3x इज 6x प्लस 87 माइनस 360 360 राइट हैंड साइड पे प्लस 360 था, लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस 360 हो जाएगा. सो एक्स स्क्र प्लस 6x 87 minus 360 is minus 273 equals to 0. So this is the required quadratic equation. Okay, so this is the fourth part. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमने speed of the train को find करना है. So question क्या कह रहे हैं, एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर जो ट्रेन की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, अगर जो ट्रेन की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, तो वो कितना टाइम ज़्यादा लेती, 3 आवर्स ज़्यादा लेती. If the speed had been 8 km per hour less, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. हमने स्पीड ऑफ द ट्रेन को फाइंड करना है. जिस वैल्यू को फाइंड करना है उसी को हम क्या मान लेंगे, x. और इसमें टाइम की भी इंक्लूडिंग है, बीच में इंक्लूड है, तो हम टाइम को क्या मान लेंगे, t. एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज 480 जो कि कांस्टेंट है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है इस केस में भी और सेकंड केस में भी. ओके, सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक बेसिक फॉर्मूला पता है फिजिक्स का कि जो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. देयरफॉर डिस्टेंस विल बिकम, डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं. स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. इसी में हम सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे. सो फर्स्ट केस में क्या है, अगर ट्रेन की स्पीड x है तो कितना टाइम टेकन कर रही है, t आवर्स. ठीक है, कितना टाइम टेक कर रही है, t आवर्स. अगर ट्रेन की स्पीड x है तो कितना टाइम ले रही है, t आवर्स टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर. सो दिस इज द इक्वेशन वी कैन से सेकंड. एंड सेकंड केस में इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कितनी हो रही है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब पहले से 8 कम है. पहले कितनी थी x, अब कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर लेस. देन द टाइम वुड हैव टेकन 3 आवर मोर. तो कितना टाइम ज़्यादा लगता, 3 घंटे ज़्यादा. पहले पहले कितना टाइम था, t. अब कितना टाइम हो जाएगा, 3 घंटे ज़्यादा, मतलब t प्लस 3, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है. अब रिड्यूस्ड स्पीड को और इंक्रीज्ड टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस. एंड डिस्टेंस कितना है, सेम डिस्टेंस कवर करने के, सेम डिस्टेंस 480. सो इससे हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी. पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो xt प्लस 3x माइनस 8t minus 24 equals to 480. so this will become okay. so अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे. so this will become xt plus 3x minus 8t minus 24 minus 480 because 480 उधर प्लस 480 था, लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस 480 हो जाएगा. so this equation becomes xt plus 3x minus 8t minus 24 minus 480 is equals to 0. Now put the value of t from equation 2. From equation 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने t की जगह क्या पुट करते जाना है, 480 upon x. so this becomes x into t की जगह 480 upon x plus 3x minus 8 t की जगह 480 अपॉन x
-24 -24 minus 480 is -504 is equals to 0. x से x कट जाएगा, 480 प्लस 3x 8 इंटू 480 3840 upon x minus 504 is equals to 0. Now the equation becomes 3x minus 3840 upon x plus 480 minus 504 is minus 24 is equals to 0. अब हम LCM ले लेंगे, LCM आ जाएगा x and the equation become 3x square minus 3840 minus 24x is equals to 0. x चला जाएगा राइट हैंड साइड और मल्टीप्लाई होकर 0 के साथ वो खुद भी बन जाएगा 0. देन द इक्वेशन बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल्स टू 0. अब हम इसको रीशफल कर लेंगे, 24x x वाली टर्म को सेंटर में ले आएंगे. सो दिस बिकम 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0. अब इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा. then the equation becomes x square minus 8x minus 1280 is equals to 0. सो 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 8x minus 1280 is equals to 0. This is the required quadratic equation. Okay.